सेलिब्रिटी नहीं मानते हो, हाँ। आर्टिस्ट नहीं मानते हो, तो हु सुनील ग्रोवर? That's the question. द $1 million question. हाँ, बिल्कुल नहीं पता। मुझे शो से किसी ने रिप्लेस कर दिया, तो अब उसको लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। हम लोग अच्छाई क्यों नहीं देख पा रहे? मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, शायद आजकल बड़ा चल रहा है मैनिफेस्ट वर्ड। कूल वर्ड। कूल वर्ड। Well, life throws all of us challenges. It's what we make of these challenges that set us apart. How we utilize these opportunities to constantly remain in the making. And there's one such actor that has just constantly found ways to break the mold and reinvent himself. And my show, ZEE5 Presents In the Making, would have been completely incomplete without having you, Sunil Grover, on the show. So thank you. Thank you for coming. Thank you, Sneha. To my Thank you for sweet little inviting setup. me. Thank you so much. आज हम सेरामिक पेंटिंग करने वाले हैं अरे while वाह। we talk. आपने पहले किया है कभी? मैंने देखा भी नहीं है। So I'm going to start with a question that I like to ask my guests at the start of the show. थोड़ा tricky है. जी। When was the last time you did something for the first time? और वो experience कैसा रहा आपके लिए? Okay, every time I go on stage, it's almost the first time for me, though I've done repeated my acts. So, because I go with new set of, whenever I perform live, so it's almost going every time doing fresh, something new, because a new audience. Yeah. And you feel that, okay, you're doing it for the first time. You feel And that the way even nervousness- now? Yeah, the nervous energy. And will you get that applause or reception in the beginning as you enter each time? So वो दिमाग में रहता है कि यार वो आएगा कि नहीं आएगा, या वो जोक पे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। हाँ जी, तो वो हमेशा पहली बार ही लगता है, और मैं बड़ा ऑफन ही होता रहता है मेरे साथ, ये तो ऑफन पहली बार होता रहता है। I've often wondered, आप इतने invested हो in making people laugh all the time. Most of the time. Most of the time. Yeah. What makes you laugh? Who makes you laugh? So I laugh at केशव मुखर्जी सीन्स और राजेंद्र ओल्ड फिल्म्स, पर मैं बड़ा उनके बचपन से ना मेरी इमेज है लाफ्टर के बारे में, यार ये आएंगे तो स्क्रीन लाइट अप हो जाती है। राजेंद्र नाथ आते हैं, ओह माय डार्लिंग, आह, तो मैं को देखता हूँ, मेरे को हंसी आ जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। सो बड़ी मज़ा आता है उनको देख के। एंड आजकल? आजकल मैं खुद को ही देखता हूँ, सॉरी, पर कई अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं कार्टून फिल्में बड़ी इंजॉय करता हूँ मैंने। हाँ, कार्टून देखता हूँ, वो मुझे बड़े फनी लगते हैं, और फिल्म्स आती हैं बड़ी सारी, वो भी इंजॉय करता हूँ। Well, speaking of आपकी project, when I was Sunflower 2, जी। honestly, I'll be honest with you, I couldn't imagine you in a role like that, and after watching Why? it, I couldn't imagine anyone else play it, because that's how believable you made it. What is it that drew you to this character? But why you couldn't imagine me to playing यार that part? हमारा हो जाता है ना stereotypes in our own head which we need to break away, but somehow I couldn't unsee you. Once I saw it, I was like, I can't imagine anyone else play this character. Okay. What? Thank you for the compliment. It is a but compliment. Yes. Well, I forgot sticks. that we have to also. ये हो जाता है. I sunflower get में, really. sunflower I'm में. so sorry to नहीं, नहीं. interrupt you, but हो जाता है मेरे साथ because I get really caught up in the conversation. But we are going to do ceramic painting today. I love ceramic painting. It's the love of my life. और मेरे को अच्छा लग रहा है एक्चुअली। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं भी मैनिफेस्ट कर रहा था, शायद आजकल बड़ा चल रहा है मैनिफेस्ट वर्ड। Cool word. कूल वर्ड है। हाँ. मैं बड़े दिनों से मेरा मन कर रहा था मैं कुछ पेंट करूं, मैं पेंट करूं, और आज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। For the first time. Speaking of Sunflower season 2 on ZEE5. जी। Honestly, what is it about this character that drew you in from the start? विकास सर बना रहे थे और मुझे रोल बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा बड़ा सिंपल रोल है, वन लाइन बहुत अच्छी थी, रोल बड़ा मुझे लगा सिंपल है। पर जब वर्कशॉप के लिए बुलाया मैंने ओके कर दिया, सर करते हैं। और बड़ी देर से तमन्ना थी मेरी उनके साथ काम करने की, और विकास सर प्लान भी कर रहे थे, 2-3 प्रोजेक्ट हमने प्लान किए, वो वर्कआउट नहीं हुए, पर ये बोले कि फाइनली आई हैव समथिंग। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। तो मैं जब वर्कशॉप के लिए गया शूट शुरू होने से पहले, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कैरेक्टर इतना सिंपल नहीं है जितना वो मुझे पढ़ने में लग रहा था। वही राइटिंग की ब्यूटी है कि वो इतनी सुंदर लिखा हुआ है कि सिंपल लगता है। जब चीज़ें सिंपल लगने लग जाए तो लगता है कि अच्छी है।
है ना? तो फिर मैंने कहा धीरे धीरे एक्सप्लोर किया और समझने की कोशिश की, क्योंकि एक ही आदमी है जो सिंपल लगता है, लोनर है, थोड़ा ऐसा लगता है इडियट भी है कि अपने ऊपर ब्लेम ले रहा है, लेकिन कई जगह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, आंसर विटी भी है और अपने आप को बचा लेता है, और सेल्समैन ऑफ द ईयर है, बट स्टूपिड भी बोल सकते हैं कभी कभी, लेकिन लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, कई बार कर भी लेता है, लेकिन मतलब समझ नहीं आता कि क्या है, और ओसीडी है। तो इतनी सारी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके ये एक आदमी नजर आना कि यार यही आदमी हो सकता है, तो वो समझने में थोड़ा सा, और फनी भी है और गैग्स भी करता है। तो वो सारी चीज़ें एक साथ, वो राइटिंग की ब्यूटी है कि वो पता नहीं चलता, और बड़ा मज़ा आया करते हुए मुझे। फिर जब मुझे थोड़े दिन बाद समझ आ गया, मैंने जवाब थोड़ा लंबा नहीं देगा क्वेश्चन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम हैविंग फन। ओके, अब मैं सॉरी, आई एम, यू कैन गो टू द नेक्स्ट पेटल। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अ पेंटर। An artist. An artist. Oh, sorry. An artist. Oh, it is an artist. But I actually feel that way about all the characters you play. It's so fascinating to see one actor find a way to immortalize so many characters that are so different from each other. Whether it's Dr. Gulati, whether it's Gutti, whether it's Tango, whether it's Sonu. Is it important for you in your own head to be able to distinguish one from the other? Thank you so much. I love people. I love... And I'm not just happy with myself. I want to become someone else most of the times. And I get more comfortable. Right now, I am as myself in front of so many cameras. I'm not as comfortable as I would be someone else. Really? Yeah. Because I don't know who am I. Who Sunil Grover? Yeah. So I don't know. Abhi tak. Abhi tak. I just know that I enjoy being someone else. And I enjoy living emotions or experiencing through someone. मेरे लिए बड़ा entertaining होता है, और एक sorry but heavy word है, but ऐसा लगता है कि जब कोई कैरेक्टर सही करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेडिटेशन हो रही है, तो एक्सरसाइज जैसा लगता है। You connect with yourself. बड़ा मजा आता है वो, and you forget yourself, not connect, पता नहीं क्या होता है, वही होता है ना ब्रीदिंग, जब आप मेडिटेट करते हो तो ब्रीदिंग में कॉन्सेंट्रेट करते हो, देन यू forget most of the things. So when I'm playing someone else, I for that moment, for those 20 seconds, the short, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जितना भी है, वो आप अपने आप को भूल जाते हो, and you're living that life, and that gives me so much satisfaction. And the outcome of it, कि क्या होता है कि सामने अगर लोग हंस रहे हैं, या रिक्वायर्ड जो है, ऐसा नहीं कि आप सीरियस कर रहे हो लोग हंस रहे हैं पर अगर सीरियस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट वैसा पड़ रहा है, और हंसने का इम्पैक्ट वैसा पड़ रहा है, तो आपको लगता है कि यार ये मज़ा आया। Exactly. Exactly. And I started with stage, तो मुझे वो जो थिएटर हम लोग ड्रामा करते थे, तो वो जो इमीडिएट जो रिस्पॉन्स की आदत होती है, वो भी एक अच्छा लगता है। And I can imagine वो काफी एडिक्टिव भी हो सकती है, to just be able to make people laugh. जो laugh, yeah, whatever it is, but you get immediate results. ऐसा कि फिल्म तो 6 महीने लगेंगे, या वेब शो है उसको 7 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा रिलीज होते होते, स्क्रिप्टिंग पार्ट है, शूटिंग है, रिलीज हो रहा है। ये तो आपने तैयार किया और गए, और तुरंत आपको पता चल जाता है कि वर्क किया कि नहीं किया उस ऑडियंस के लिए। मे बी सम टाइम ऑडियंस भी चेंज होती है, तो बदल जाते हैं कि एक जोक सेम टाइम पे आपने सुनाया, या सेम टाइम पे एक शो किया, डिफरेंट ऑडियंस के लिए वो वर्क नहीं किया इतना, और लोगों को ज़्यादा समझ में आया, तो रिलेटिबिलिटी की बात है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहीं जब रिजल्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सॉरी, मैं फूड बनाना है मुझे, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ। But when you get so much love from the audience for doing a particular kind of role, for making them laugh, is it gutsy? Does it make you nervous to take on a negative character? क्योंकि आपने करियर में काफी बार किया है ये, so ये जो ड्राइव है कुछ नया करने का, वो कहाँ से आती है? मैं एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ थोड़े दिन यहाँ पे, सेल्फिशली। तो मुझे एक्सपीरियंस करना है, और मैं इसमें बड़ा लालची हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है। डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स तो मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस, मुझे आप टीवी मत दिखाओ, मुझे वेब शो मत दिखाओ, फिल्म में दिखाओ, मुझे लोग रख दो मेरे सामने, मैं सारा दिन देख सकता हूँ, और मुझे बस उनको पोर्ट्रे करना है, और कितने मैं ऑनेस्टी से और कितनी ईमानदारी से उसको मैं समझ के कर सकूँ, उसको अपना के, तो वो मेरी क्वेस्ट है, वो मेरी जर्नी है। तो आपके जो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, आप ऐसे चीज़ें करते हो जो शायद हम कभी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पे देखने
को नहीं मिलता है. For example, you are selling vegetables, you are doing बर्तन, you are drawing water from a well. ये क्या है? Like, is this your way of keeping the fame at bay and staying? I don't know. What is it? I was very curious. आपने वर्ड यूज किया सेलिब्रिटी. मैं अपने आप को मन में सेलिब्रिटी मानता ही नहीं, या अगर हूँ पता नहीं हूँ. कितने फॉलोअर्स हैं आपके? वो फॉलोअर्स से डिपेंड नहीं करता. फॉलोअर्स तो कितने भी बढ़ा लो. अच्छा. हाँ, आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, इनवाइट कर सकते हो लोगों को और बढ़ जाएंगे. वो स्ट्रेस नहीं है. अच्छा, स्ट्रेस नहीं है उसका मुझे तो बिल्कुल नहीं है. काफी लोगों को है बहुत. आप कितने भी फॉलोअर बना सकते हो, उससे मुझे लगता है अगेन वो मतलब वो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है. Okay. चाहे कम ज़्यादा जिसके भी हो. और प्लीज़ आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं, करते हैं या पोस्ट करते हैं कुछ भी, मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कितने आपके फॉलोअर्स हैं, आप अपने आर्ट को उससे मत तोलिए. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. चेंज होती हैं रहती हैं चीज़ें. ओके. हाँ. The things that I see you do on your Instagram, what does that do for you? To be able to sit on the street and wash बर्तन और sell सब्जी और draw, मतलब बहुत fascinate किया मुझे. बचपन से मैं कर रहा हूँ ऐसे. मेरे 9th में 8th में मेरे पास फोटोग्राफ्स है कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा. वो फोटोग्राफ्स में सब में कहीं तो मैं एक टोल नाका पे बैठा हुआ हूँ और वो मैं टोल ले रहा हूँ. यहाँ एक मैं वैष्णो देवी गया था, वो म्यूल सेंटर है वहाँ पे ना आप हायर कर सकते हैं. हाँ. तो वहाँ पे मैं रिसीट काट रहा हूँ लोगों की. मेरे पास वो फोटो है. मैं किसी रेडी. तो मेरा बचपन से शौक है. आई थिंक दैट्स समवेयर. मैं जैसे पहले भी कहा कि मुझे लोगों दूसरा कुछ बनना अच्छा लगता है ऑल द टाइम. सो वो एक चीज़ है. और दूसरी शायद एक सबकॉन्शियस में चीज़ है कि मुझे तो इन चीज़ों में भी बड़ा ग्लैमर दिखता है. मज़ा हर चीज़ में है. आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है. इज़ व्हाट आई एम सेइंग. लाइफ इज़ नॉट एज कि हमको हर वक्त फ्लैश करने की, सिंपल चीज़ें भी फ्लैश कर सकते हैं ना हम लोग, है ना. क्यों हमें तभी फोटोग्राफ लगा ली अपनी, जब हम बहुत ग्लैमर, बहुत ऐसा लग के सज धज के. और वो भी गारंटी नहीं है कि आप सब लोगों को अच्छे लग रहे हैं. हेलो. उसकी कोई ना कोई फिर भी बोले हम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, है ना. कुछ लोग इतने हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है. बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने. इस चीज़ का आंसर यही था कि मेरे को अच्छा लगता है वैसा करता बस. Does it keep you rooted to the artist? I guess that's why, maybe. Answer actually यही है. हाँ. पर अगर मैं इस आंसर को दूंगा ना और एक्सेप्ट करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानता भी नहीं. मुझे लगता कि सेलिब्रिटी नहीं मानते हो, आर्टिस्ट नहीं मानते हो, तो who सुनील ग्रोवर? That's the question. The $1 million question. हाँ. बिल्कुल नहीं पता. Someone who wants to experience, explore a little bit here and there, and enjoy. Enjoy? Enjoy. Enjoy the main. Enjoy main है. वो तो बंद ही नहीं होना चाहिए. I want to talk about United Kacche, where you play on Z5, where you play a Kacha immigrant. Yeah. What do you think about this that really struck a chord with the audience? It's a special one. It's like मेरे हिसाब से it's exploring. कहीं भी हम जाते हैं तो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जगह एक्सप्लोर करते हैं. हाँ. वो मेरे लिए एक आदमी एक नई जगह पे सेटल. और मैं बड़ा रिलेट भी करता हूँ. जैसे मैं भी मुंबई आया. हाँ. डबवाली से. तो वही ये जो कैरेक्टर है, ये टैंगो, ये जाता है लंदन में, वहाँ शिफ्ट होता है. तो वो नई जगह, नए लोग, नया सब कुछ अपने आप को इस्टेब्लिश करना. सो आई कुड रिलेट. तो मुझे वो लगा कि थोड़े दिन चलो ये एक वापस एक मज़ा आएगा देखने का कि नई जगह. अभी कुछ साल हो गए मुझे काम करते हुए, पर वो एक बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस था जब आप नई जगह पे जाते हैं अपने आप को. मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वैसे भी कि नई जगह गए हैं और वहाँ पे अब आपको सेटल होना है. और क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हम लोग हर 5 साल में नई जगह पे जाते. तो वो मुझे आदत बन गई. नए फ्रेंड्स बनाना 5 साल बाद, नए लोग मिलना. तो मुझे नई जगह पे जाना, लोगों से मिलना और सब कुछ वहाँ पे नए सिरे से शुरू करना कई बार अच्छा लगता है. तो ये शो उसी बारे में था कि एक बंदा वहाँ गया, अपने आप को नया, अपनी लाइफ सेटल कर रहा है. और तो मुझे वो वापस उसके बारे में जी के देख के मज़ा आया. Oh, it was very, very interesting. Just as sunny as your sunflower is,
कभी-कभी career में there on the other side there have been some low phases as well. जी Some projects been replaced from जो हर actor के life में जी होती जी है. जी I'm actually more interested in knowing how you work past the feelings of inadequacy or self-doubt that I assume can. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सेल्फ डाउट आता है और लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग ना धीरे धीरे वो बन जाते हैं जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि हम क्या हैं। Explain more. हम धीरे धीरे वो बन जाते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम क्या हैं। ओके अगर आपको 5 लोगों ने कह दिया सुबह उठ के कि आप सुंदर हो, आपको लगता है वाह मैं तो सुंदर हूँ। अगर आपको 5 लोगों ने कह रहे ये क्या लग रहा है, तो बीमार है क्या, आपको लगता है अरे मैं तो शेव किया था, मैं तो ठीक लग रहा था, मैं हैसल लूँ क्या। और बात भी ठीक है, आपको लोग बताते हैं आप क्या है यार, आप उस पर यकीन कर लेते हो। हम लोग इसीलिए एडवाइस के लिए भी जाते हैं, यार तेरे को क्या लगता है ठीक है, करो कि नहीं करो। अप्रूवल ऑल द टाइम, वी नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर पीपल फॉर एवरीथिंग। और उस चक्कर में क्या होता है ना, कई बार किसी ने आपको शो से, मेरे साथ हुआ, मुझे बात सुनिए, शो से मुझे पेंटिंग भी करनी है, मुझे शो से किसी ने रिप्लेस कर दिया, तो अब उसको लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। इनिशियल स्टेजेस माय करियर एनीवे, तो वो सेल्फ डाउट में आ गया कि भाई मैं तो काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है वो, बहुत ही मुश्किल है। पर आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना थोड़े टाइम बाद, मैं ढीठ हूँ, थोड़े टाइम बाद लगा कि यार नहीं बहुत मुश्किल है यार, ये कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। 15-20 दिन 1 महीना लगा, वो आपस में फिर ढीठ बन गया। मैं कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो शुरू करते हैं। तो आई थिंक ढीठ इज द आंसर। ढीठ इज नेसेसरी, ढीठ इज नेसेसरी। सेल्फ डाउट हो तो ढीठ कोई आपको बोले तो ढीठ, आप अपने आप को सुन लो। आप देखो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपने आप को मिरर में अप्रिशिएट करते हैं ना, मुंह टेढ़े मेढ़े करके ना, उससे गंदी शक्ल नहीं होती उनकी, उनका वर्स्ट वर्जन होता है somehow उनका। मेरे साथ भी होता है, मैं वैसे शायद ठीक लग रहा हूँ, पर मैं मिरर के सामने मेरा क्यों शोल्डर ऐसे हो जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है। और लड़कियां भी देखा है मैंने, पाउट, करेक्ट। तो कुछ ना कुछ ऐसा, तो सब एंगल से, और वो एक्चुअली अच्छे नहीं लग रहे होते। What was my question? हाँ, एडमायर करते हैं हम अपने आप को। हाँ। तो बस वो जो एडमिरेशन है ना, उसको ऑन रखो। आप अपने लिए एक क्राउड लेके चलो अपना ही, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन होना चाहिए, और वाह क्या लग रहे हो जब चल रहे हो ना, वाह क्या लग रहे हो, थैंक यू बोलते चलो सारा दिन आप। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी की वेट मत करो कि कोई आएगा और बोलेगा गुड जॉब, नो। आप अपने साथ रहो। सॉरी मैं आज इतना अग्रेसिव क्यों, मेरा आर्टिस्ट बाहर आ गया है। सो somehow मैं पता नहीं हर चीज़ का अग्रेशन से जवाब दे रहा हूँ आज। हाँ। So how do you deal with the feeling of inadequacy? Is be your own hype squad, अपना खुद का cheerleader. अच्छे वर्ड्स में यही बात, और हाँ, बट बात वही है। बट मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल बोलूँगा ना फिर लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो 2-4 बार हो जाएगा। है मुश्किल एक्चुअली मुश्किल है, लेकिन और कोई चारा नहीं है भाई। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे को एक जगह रेडियो स्पार्कलर था, रेडियो पे इंटरस्टिशियल्स जो आते हैं छोटे छोटे कॉमेडी के, बहुत टाइम पहले किसी को रेडियो नेटवर्क ने बोला कुछ बनाओगे, मैंने कहा बनाया, उन्होंने लाइक नहीं किया, फिर मैं दूसरी जगह दिया, उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा एक जगह लगाते हैं, फिर ऑल इंडिया लगा दिया और वो हिट हो गया। तो मुझे समझ में आया वो जो मेरे को रिजेक्शन थी किसी और का, ये और बाद में तो बहुत ज़्यादा हिट हो गया वो सुड। तो मुझे समझ में आया, फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन गया। वही चीज़ अमेजिंग। रेडियो बोलते हैं बहुत फास्ट पेस होता है, ये तो स्लो पेस है, और मुझे लगता था यही तो अच्छा है, क्योंकि बहुत फास्ट है, उसके अंदर स्लो कुछ अच्छा नजर आएगा, सुनाई देगा तो अच्छा लगेगा, रिदम ब्रेक होगी। बट टाइम लगता है, मुझे लगता है ढीठ अगेन, अगर मैं ढीठ हम होंगे तो चलता रहेगा।
बाकी मुझे इतना समझदारी नहीं है, अपना अपना सब अपना देख के चलो भाई, मेरी बात पे 100% भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बस सनफ्लावर बनानी है। मुझे सनफ्लावर बनानी है। But speaking of this validation that हम लोग constantly we are seeking on social media otherwise, and आजकल तो मतलब on social media everyone has an opinion, क्योंकि you can have an opinion, क्योंकि मेरा भी है social media, होना चाहिए। cancel culture भी काफ़ी prevalent हो गया उसके वजह से। Correct. Why can't it be a nice world कि हम लोग अच्छाई क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, उसकी एग्जिस्टेंस की तारीफ करें, उसके होने की वजह को सेलिब्रेट करें। ये क्यों नहीं कर पाते हम लोग क्यों करते रहते हैं हमेशा? अरे हम में भी इस चीज़ें नहीं है यार, अगर ऐसे देखा जाए। But it's true. It is true. क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है? हाँ? क्यों कंपटीशन? अरे भाई ये भी अच्छा कर रहा है, ये थोड़ा ऐसा अच्छा कर रहा है, ये वैसा अच्छा कर रहा है, इसको भी सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी चलते हैं ना साथ में। हाँ, और जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको सब उसका मजा लेते हैं, है ना? Yeah. क्यों नहीं? क्यों भाई साहब? कैमरा के पीछे भाई साहब बंटी जी, है ना? हाँ। But when it comes to cancel culture, आप अपने खुद के filters कहाँ draw करते हो to make, I mean, you have to be mindful. So when it comes to your own personal brand of comedy, what are your filters? Where will you not go? मुझे लगता है कि किसी की फेथ को क्वेश्चन ना किया जाए, उसका विश्वास है ना, उसके साथ वो पला बड़ा है, तो उस पे आप ना टच करो। Have you ever made a joke that you regretted? नहीं, रिग्रेट वाली तो मेरे को कोई बात नहीं। कभी नहीं। वो कई बार ऐसा मोमेंट में कहीं हो गया हो, कुछ बोल गया हो, तो ऐसा आप यू कैन बी सॉरी, बट ठीक है, अभी पता नहीं चलता, लेकिन नो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ, विश करता हूँ ऐसा ना हो, मैं अलर्ट रहता हूँ। पर कई बार किसी को चोट पहुँची भी हो तो मेरा उद्देश्य या मेरा हंसाना है, किसी को चोट पहुँचाना नहीं है। और लेकिन ये मीडियम ऐसा है ना, इसके अंदर किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे बुरा लग सकता है। अगर इंटेंशन सामने वाले की तो पता होता है ना कि हंसा रहा है यार, तो हंस लो ना, है ना? तो हाँ, बहुत अगर हंसाने की उसकी इंटेंशन नहीं है, कुछ और इंटेंशन है, तो बात अलग है। Yeah. You had said something in an interview that stayed with me. You talked about how the loneliness in your character in Sunflower 2 sort of resonated with you. Comedian loneliness. Loneliness तो नहीं, इतना लोनली तो मैं ज़्यादा कभी भी नहीं रहा, बट हाँ, acknowledgement जो होती है ना, वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, एज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, वो सोनू का जो कैरेक्टर है सनफ्लावर में, उसको वैलिडेशन चाहिए, एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर इट। He wants to be accepted in a typical way in the society, or where he works, or where and he wants to project वही Instagram वाली बात कि मुझे पता है, you know, I am also arrived, ये जो है ना, हाँ, तो वो बेचारे क्या था? वो डांस स्टेप किसी को कूल दिखाने के लिए डांस स्टेप होता है। एक्चुअली विकास सर का ही आइडिया था ये कैरेक्टर में डालने का। सोनू, he wants the validation. वैलिडेशन, तो वो वैलिडेशन, थैंक यू, आप मेरे नेविगेटर हो, मैं भटक जाता हूँ, आप मुझे फिर ले जाते हो कि अरे उधर है किनारा। तो सोनू में ये बात अच्छी है, वैलिडेशन, और ये उसको सोनू भी बनाती है, मुझे अच्छा भी लगता है। उसके अंदर ये क्वेश्चन, उसकी जर्नी, उसकी वीडियो गेम है, चलते रहने देते हैं। अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है? टिल द टाइम इज नॉट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट, तब तक ठीक है। What's the most misunderstood thing about being a comedian? मुझे सबका नहीं पता। हाँ। ओके, मैं अपना आसपास के लोगों का बताता हूँ कि हमारी इंटेंशन, जो मेरी इंटेंशन है, या मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे आसपास है, हाँ। ये उनकी इंटेंशन सिर्फ हंसाने की है ना, ताकि वो कॉमेडियन है। और कई बार कोई बातों में बात कोई बोल जाता है, सुन लो, उसका पर्सपेक्टिव है, क्यों उसको, अरे तूने ऐसा क्यों बोल दिया है, हंसो ना, उसको बेचारा हंसाना ही चाह रहा है ना, सारी रात बैठ के जोक्स पे काम किया उसने, तो हाँ, अगर वो आप कुछ गलत बात कर रहे हैं, कई लोग कुछ बोले, तो मैं समझ सकता हूँ, पर वो थोड़ा बहुत ईजी हो जाओ, थोड़ा बहुत।
help me complete the statement. Sunil Grover is in the making because he loves that process. And he's enjoying. He's enjoying, he's having fun. And there's in the making because there's a lot more to experience, a lot more to explore, a lot more to do, and a lot more to learn. And it's fun. It's fun, yeah. And on that note, let's take a look at the ZEE5 manifesto, Roz Kuch Naya Bante Raho, voiced by Manoj Bajpayee. रोज कुछ नया बनते रहो। इस दौर में सबकी यही कहानी है, हाथों के लकीरों की बात किसने मानी है। दुनिया कहती रहेगी सेटल हो जाओ, तुम अपनी कहानी लिखते रहो, रोज कुछ नया बनते रहो। बुझने ना दो उस आग को, आवाज को, हर जज्बात को, अपनी कहानी को अल्फाज देते रहो, रोज कुछ नया बनते रहो। वो टोकते रहेंगे, वो रोकते रहेंगे, पर तुम पत्थर नहीं जो जम चुके हो, तालाब नहीं जो थम चुके हो, बहते रहो, आकार लेते रहो, रोज कुछ नया बनते रहो, रोज कुछ नया बनते रहो। ZEE5, आज क्या बनोगे?